Good morning, class 8th. How are you all, beta? Okay, I am here again with the next topic, chapter 8 from history, the introduction to the modern period. We have done almost the whole topics of history. The chapter 1 is left, that is the modern period. In class 6, I have discussed about this, that history is divided into 3 parts: ancient history, medieval history, and modern period, या modern history, right? Do you remember that? We have read about ancient history in class 6th, and in class 7th we have read about medieval history, in which we have read about the Delhi Sultanate, Mughal time period, okay, Rajput kings, new regional powers in South India as well as North India. Okay, we have done all this in our class 6th and 7th. Now, when was the modern period started? It just started after the death of Mughal Emperor Aurangzeb. He died in 1707. औरंगज़ेब की डेथ कब हुई? 1707 में. एंड उसके बाद का जो टाइम है, वी कंसिडर दैट टाइम एज द मॉडर्न पीरियड. ओके, जो ओल्ड सिस्टम था, इट गेव प्लेस टू न्यू आइडियाज़, मैनी न्यू पावर्स एमर्ज इन पॉलिटिकल हॉरिजॉन ऑफ इंडिया. At that time there were European trading companies in our country. They came to India for trade work, and when they saw that there were disunity, then they just tried to control over our areas. Okay, and they were successful in that. So about all these European पावर्स 1707 से 1947 तक, दैट पार्ट इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री. इस पार्ट को हम मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री के नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं. एंड इन दिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूरोपियन एरा इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में जो यूरोपियन कंट्रोल हुआ, उस चीज़ को हम रीड करेंगे. क्लियर? सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी. ओके, एंड it took advantage of political instability, as I have discussed before, and 1858 the power went to the hand of the British Crown. Totally 1858 में total power went into the hand of British Crown. पूरी की पूरी पावर ब्रिटिशर्स के हैंड में जा चुकी थी. In 1857 there is a revolt. ठीक है, and in this revolt all the Indian kings were defeated badly by the Britishers because of the disunity, or because of lack of unity and lack of weapons, and planning is not proper. ठीक है, these are the reason कि 1857 का जो revolt था, we defeated in that revolt. Okay, and after that revolt in 1858 the total power was in the hand of British Crown. Okay, Britishers adopted different measures to control over India. Military actions, they did all the military actions, friendly relations, okay, and introduction of railways, postal services, passing different act. Clear? And 1857 revolt. These are the major event, but the main event जो हमारी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा था, हमें इंडियंस को यूनाइट किया, दैट इज़ द Indian National Congress in 1885.
इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट है, जो मेजर इवेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने को एस्टैब्लिश किया। ओके, द मेजर इवेंट ऑफ 20th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी के मेजर इवेंट थे, मिलिट्री एक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। दीज वर द मेजर इवेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जो डिफरेंट वर्क किए, दीज आर दोज इवेंट्स। क्लियर? The British continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement. 1857 के बाद जो इंडियंस थे, they just strengthened the feeling of nationalism. उनकी नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होती गई। एंड इसमें और ज़्यादा वर्क किसने किया? जो 1885 का एस्टेब्लिशमेंट थी कांग्रेस की, उसने इसे और स्ट्रॉन्ग किया। But it is about the 19th century. And what happened in 20th century? In 20th century, India were the partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, etc. These were the events that had done in 20th century. Okay, और ये सब हम रीड करेंगे हमारी जो फ्रीडम फाइट है उसमें 19 से लेकर जो 1947 की है। इन दैट वी विल रीड ऑल दीज टॉपिक्स। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने के लिए दे जस्ट प्लेड अ ट्रिक एंड दे जस्ट डिवाइडेड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो हमारा ब्रदरहुड था उसको ख़त्म करने की कोशिश की एंड दे जस्ट फॉर्म द मुस्लिम लीग। होम रूल लीग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इवेंट कि इंडियन डिमांडेड फॉर होम रूल। इंडियंस ने होम रूल के लिए हमारा अपना रूल हो ऐसी डिमांड की थी। जलियांवाला बाग मैसेकर में भी यू ऑल नो दैट कि जनरल डायर ने शूट आउट का जो ऑर्डर था वो दिया था एट द इनोसेंट पीपल। ओके, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। सो दीज वर द मेजर इवेंट्स एंड विद दैट गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स। बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए टू पैसिफाई द इंडियंस को भटकाने के लिए, उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए रिफॉर्म्स बनाए गए। ओके, टू वीकन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि वो देख लें और उनको लगे कि हाँ हमारे लिए बहुत वर्क किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और वो फ्रीडम के लिए कोई भी वर्क ना करें। तो इस तरह की जो रिफॉर्म्स थे वो इंडियंस की जो पावर थी फ्रीडम स्ट्रगल की उसे वीक करने के लिए किया जा रहा था। ओके, एंड इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मैनी अदर नेशनल लीडर्स वी गॉट इंडिपेंडेंस। 1947 में महात्मा गांधी और अदर लीडर्स के अंडर हमने इंडिपेंडेंस गेन किया। ओके, बट एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज दैट वर इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, हमारी कंट्री को उन्होंने जाते जाते भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्टली तो यहाँ के सिटीजन्स को ही डिवाइड किया था, बट इन लास्ट they divided our country in 2 parts, that is India and Pakistan. Okay, now from where we get the knowledge about these? इन सब के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? We get the knowledge about these from the British documents. British documents means they have records of reforms of the laws that they introduced in our country. उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो रिटन रिकॉर्ड्स उन्होंने अपनी क्वीन को भेजे एंड ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर रिजर्व देयर। वहाँ पर अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं। तो 200 के नियर अबाउट उन्होंने हम पर रूल किया था। एंड द रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म्स, मॉरले-मिंटो रिफॉर्म, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब रिफॉर्म्स, ये सब जो उन्होंने लॉज बनाए, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं
about the modern history. Okay, these tell us about the condition of people as well as administration of that time. अब उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से रूल किया जाता था, किस तरह से इंडियंस को टैक्सेस पे करवाए जाते थे, मतलब जिस भी तरह से उन्होंने हम पर रूल किया, ऑल दीज आर रिटन इन देयर रिकॉर्ड्स. ओके, एंड दीज रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल आल्सो, कि एट दैट टाइम पीपल वर पुअर, इलिटरेट, देयर वर सोशल इविल्स. तो उन्होंने जिस भी तरह का रिफॉर्म्स किए, जो भी लॉज बनाए, तो उनका क्या इम्पैक्ट आया या लोग किस तरह के थे, ये सब कुछ रिटर्न है. ओके, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल लाइक एल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल एंड द अदर्स वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. जो भी उन्होंने लॉज बनाए, बिल पास किए, उन सब से भी हमें ब्रिटिशर्स के बारे में नॉलेज मिलती है. बुक्स, देयर आर मैनी बुक्स written by Indians as well as Britishers. Okay, so they are preserved in public or private library. Most books like Anand Math by Bankim Chandra Chattopadhyay, My Experiment with Truth by Mahatma Gandhi, Unhappy Indian by Lala Lajpat Rai. ठीक है, so learn the name of these as they can ask in शॉर्ट क्वेश्चंस. वो किसी भी बुक का नाम आपको बोर्ड में किसी भी बुक का नाम देकर पूछा जा सकता है कि हु हैड रॉट दिस बुक, हु हैड रिटन दिस बुक. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी. वेरी गुड. अनहैप्पी इंडियंस बाय लाला लाजपत राय एंड आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो जो हमारा वंदे मातरम है दैट इज़ टेकन फ्रॉम आनंद मठ. हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो आनंद मठ में रिटन है और वहीं से लिया गया. ठीक है, सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दीज आर रिटन बाय द इंडियंस. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत दिखाया गया हो, जो रियलिटी थी उस टाइम की वही सब रिटर्न में दिया गया. ओके, एंड इनके अलावा और क्या है? पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज़, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज़. उस टाइम की पोइट्री, जैसे जो पैट्रियोटिज़म के, देशभक्ति के सॉन्ग्स लिखे जाते थे, क्लियर, एंड कविताएं, ड्रामास किए जाते थे उस टाइम पर. अंग्रेज़ों को इंडिया छोड़ने के लिए स्किट की जाती थी, वो सब चीज़ें. लीडर्स की बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, ऑल दीज थिंग्स आर helping us to understand about the modern history. Okay, next is letter writing, speeches, etc. At that time when people wrote each other about their condition or about the condition of other people or the atrocities done by the Britishers, तो एक दूसरे को उस टाइम पर फ़ोन्स नहीं होते थे, then they have to write. ठीक है, so they wrote the letters and these letters also help us to get the knowledge about that period. Clear? So for example the collection of writings of गांधी जी, ये भी एक क्वेश्चन आता है गांधी जी का. collection of writing of गांधी जी, गांधी स्मृति नियर राजघाट. राजघाट में गांधी स्मृति में गांधी जी की कलेक्शंस है राइटिंग की, and it is the biggest museum of Gandhi ji, and there is a library and in this library there are 60,000 books. 60,000 बुक्स हमें इस लाइब्रेरी में मिलती हैं एंड 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी. ठीक है, कहाँ पर है ये? नियर राजघाट. गांधी स्मृति नाम से म्यूज़ियम है नियर राजघाट, और यहाँ पर 60,000 बुक्स हैं और 6,000 ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं. स्लोगन्स भी हमें बताते हैं कि उस टाइम पर क्या कंडीशंस होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल बाल गंगाधर तिलक जी गेव अस द स्लोगन फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट. ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्म, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है.
ठीक. The slogan given by Bal Gangadhar Tilak and the call given by Netaji Subhash Chandra Bose, you give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये स्लोगन्स हैं जो लीडर्स ने दिए और इनसे पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो हैं वो ग्रो हुई. लोगों ने पैट्रियोटिक फीलिंग्स को समझना शुरू किया और इंडिया के फ्रीडम के लिए वर्क किया. ओके, सो दिस इज़ अबाउट बुक्स, letters and records. The other 3 we will discuss tomorrow. Okay, so read these properly. I will ask questions tomorrow. Very good. Thank you. Have a nice day.